سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آپ حضرات کے سامنے میں ایک عالم کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حضرت ہیں، ایک مولانا صاحب ہیں جن کا نام مولانا رشید صاحب ہے، اور بہت انہوں نے اہل سنت کا کام کیا ہے ماشاءاللہ۔ جتنا بھی ہوا خیر ہر ایک عالم کو کرنا چاہیے، کام کامی ہوتا ہے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں۔ خیر حضرت نے کافی کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں لکھنے کے لیے چھوٹے علم کی ضرورت تو نہیں ہوتی، آپ حضرات جانتے ہیں، اور کم وقت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں وقت بھی چاہیے، مطالعہ بھی چاہیے، کتابوں کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ خیر حضرت کو دین کا بڑا درد ہے، اور عوام اہل سنت کی بہت زیادہ فکر بھی ہے۔ یہ کام وہی کر سکتے ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کے لوگوں کی فکر ہوتی ہے، آنے والی نسل کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، یہ کام وہی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹائم کا نکالنا بھی ضروری ہے، اپنی جو مصروفیات ہے، وہ جو اپنا نجی کام ہے اس کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کھانا ٹائم پر بھی نہیں کھا سکتے۔ جو علماء اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنے نفس کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہر وقت اہل سنت والجماعت کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ان تک کسی طرح پیغام پہنچ جائے۔ خیر الحمدللہ حضرت نے بہت خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے امید ہے کہ حضرت اسی طرح کام انجام دیتے رہیں گے۔ حضرت کی کئی ساری کتابیں ہیں، اور آپ حضرات ان کو لینا چاہیں تو ضرور لیں۔ جو بھی میرے ایسے بھائی ہیں جو ابھی مذبذب ٹائپ میں ہیں یا جو صلح کلیت ٹائپ میں ہیں، اگر وہ حق جاننا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کتابیں خرید سکتے ہیں۔ حضرت نے نام اس میں بتایا بھی ہے، اور کچھ کتابیں اور میں بتا دیتا ہوں۔ جو جال حق ہے وہ آپ خرید لیں، اور خون کے آنسو ہے وہ خرید لیں، زلزلہ ہے وہ خرید لیں، زیر و زبر ہے وہ خرید لیں، تقویت الایمان، حکایات اولیاء، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جو بھی آپ کو مناسب پڑے وہ آپ خرید لیں۔ پھر اور بہت ساری کتابوں کا ثبوت انہی میں مل جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کی ضرورت پڑے ویسے ہی آپ ان کتابوں کو خریدتے رہیں۔ ہر ایک تو نہیں خرید سکتا، جس کو کتابوں کے مطالعے کا بہت زیادہ شوق ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ جن کو دین کی خدمت کرنے کا شوق ہے، جن کو حق راستے کی تلاش ہے، وہ خرید سکتے ہیں، اور خریدیں میں کہتا ہوں۔ خیر اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ حضرت کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ایک مدرسے کو چلاتے ہیں، خدمت انجام دیتے ہیں۔ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ ایسے علماء کو وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے، پھر بھی الحمدللہ حضرت مدرسہ بھی چلا رہے ہیں،
کتابیں بھی جو ہے حضرت منظر عام پر پیش کر رہے ہیں. عوام اہل سنت کے سامنے کتابیں جو ہے لکھنے کے بعد عوام کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو وہ بھائی ہیں جو ابھی اپنے عقائد کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، تاکہ وہ پہچان پائیں کہ ہم ہیں کون. تو حضرت نے کتابوں کا کچھ نام بتایا ہے، آپ حضرات جو خریدنا چاہیں، جو لینا چاہیں، ان کتابوں کو آپ لے سکتے ہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. ہلو. جی ہلو. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں مولانا محمد راشد نعیمی ثقلینی. اچھا اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بڑا خوشی ہوئی مجھے، 2 دن سے میں آپ کا وہ دیکھ رہا تھا چینل. اچھا اچھا حضرت. پرسوں اور کل جو ہے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا، میں نے کہا بھائی اس کو دیکھیں. ہمارے ایک نور حسن بھائی ہیں رامپور کے، میں بھی اسی علاقے کا ہوں، بدایوں شریف کا. اچھا اچھا حضرت. ہاں، تو ہمارا بہت جو ہے گہرا تعلق ہے رامپور شریف سے بھی، ماشاء اللہ. سمجھے، کیونکہ ہمارے بزرگانی دین جو ہے سعودری ہیں. ککرالہ کی سرزمین کا ہوں. جی جی جی. ہاں، اور سب حضرت سنائیے، خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ، اللہ پاک تو کا کرم میں ہے. کل عشاء کی نماز کے بعد جب لیٹا جو ہے اپن بستر پہ، ہاں. تو حضرت یقین ماننا فجر کی اذان ہو گئی تھی سنتے سنتے. کیا؟ آپ نے بہت برا للکارا اس اقرار انصاری کو. اچھا. ایک گھنٹہ اور جو ہے 45 منٹ کی جو آپ کی وہ ہیں آئیڈیو، سمجھے. بڑی خوشی ہوئی. ویسے مجھے جو ہے ایسا ہونا چاہیے، ہمارے اس جماعت میں بہت کم لوگ ہیں ایسے. اور سب سے بڑھیا تو مجھے آپ کا طریقہ یہ لگا کہ آپ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں پہلی فرصت میں. جی پہلے نام پوچھتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بتا دے تو اس کا جواب پھر دیا جاتا ہے. جی. اور سوالات کال ٹھیک آ ہے رہا سر؟ ہے بار بار. ہاں انشاءاللہ. اچھا اچھا، ایک اور ٹھیک ہے. تو بتاؤں، فون کر رہے ہیں جی بار جی بار. جی کال جی لائن. جی کر لیجیے، بعد میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں. اچھا نہیں نہیں نہیں، لائن پہ ہی رہیں حضرت، اچھا اچھا اچھا. لائن پر ہی رہیں. ہیلو. ہاں جی، کون صاحب؟ جی السلام علیکم. جی کون بھائی جان؟ جی میرا نام محمد علی ہے. جی. میرا نام محمد علی ہے، ضلع مراد آباد، گرام بگروا سے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا. جی میں سنی حنفی بریلوی ہوں. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت. جی سر، تو میں حضرت آپ کی جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے چینل آپ کا، جی. تو اس کو سنتا ہوں. اچھا اچھا. تو اس کے تعلق سے ہی آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں کیا؟ جی فرمائیے، بولیے. مطلب میرے اپنے ہی وہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو آپ پہ انگلی اٹھاؤں. دیکھیے، جو آپ پڑھ لکھ کے بعد میں اگر اس کو نکارتا ہے آدمی حق کی بات کو، جی. تو اس کو بولیں گے پڑھا لکھا جاہل. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ دیوبندی بہادی لوگ ہیں جو اور ہیں، وہ بھی فرقے کے ہیں، سنی اہل جماعت سے الگ. تو اس کو اگر ان کے مفتی لوگ آتے ہیں تو آپ ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ حق تسلیم نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کے چینل پہ سنتا ہوں جو کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو عوام لوگ ہیں. اب عوام کو جو انہوں نے لوٹا ہے، نماز نہ پڑھنے کی بنا پہ لوٹا، اور مزاروں پہ جو اس طرح کی ہوتے ہیں جو بھی دیکھا ہوا ان لوگوں نے. ہاں. تو اب عوام کو انہوں نے جو لوٹا اپنے دماغ کی چلاکی سے لوٹا، نہ کہ علم میں دکھا گیا. جی. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ ہاں. اب جب ان لوگوں کی عوام سے آپ بات کریں تو آپ بھی اس طرح بات نہیں کریں کہ صاحب کسی بڑے عالم سے بات کر لو. اب اس کو حق کے لیے بلانے کے لیے آپ اگر میں اپنی طرف سے مطلب جو میرے من میں ہے اس کو بتا رہا ہوں آپ سے. جی آپ کی بات صحیح ہے، اور اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا کال کاٹ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ سر درد بن کے آتے ہیں، میں ہم وہی بات نہیں بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں تیرے بس کی بات نہیں ہے تو ہم سے بات کر لے، ہمارے عالموں سے تو بعد میں بات کرنا، پہلے تو ہم سے بات کر. ایسا حضرت میں وہی تو بتا رہا ہوں. جب وہ مان ہی نہ رہے، وہ پڑھ لکھ کے جاہل ہے نا، وہ جب نہیں ماننے والا تو نہیں مانے گا. ہاں. ہمارا مقصد کیا ہے حضرت؟ کسی کو ہرانا جتانا نہیں ہے. میں یہی تو آپ کو، میں وہی تو اپنے وہ رکھ رہا ہوں، جو کچھ سوال میرے اندر ہیں اس کو رکھ رہا ہوں. جی. اب جیسے سوال اگر کوئی کیا جائے کہ بھئی سب سے پہلے فرقہ پرستی کب سے ہوئی، تو اس کا سوال کا اسپیچ کا جواب ہے کہ سب سے پہلے
अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया, पैदा किया, तो सब फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। इबलीस ने उस चीज को नकारा, तो सबसे पहले फिरका तो वही बन गया, जी बन गया नहीं बन गया। जी उसके बाद में अल्लाह ने जन्नत से कब निकाला और कैसे निकाला वो तो रब जाने, क्योंकि अब सजदा नहीं किया तो दो अलग जमातें हो गई, एक इबलीस हो गया और एक फरिश्तों की जमात हो गई। तो अल्लाह से वादा भी किया, एक अल्लाह मुझे नबियों को मानने वाली जमात हो गई, एक जी? एक नबियों की ताजीम करने वाली जमात हो गई, हाँ और एक वही नबियों की ताजीम से इनकार करने वाली जमात। तो वही तो बनी तो वहीं से ही ठीक है। है। ये हाँ, बनी तो ये ये तबका, तो बनी है ना। हाँ हाँ, ये अकेला था उस वक्त। जी जी जी, अकेला था। हाँ, ये अरे अकेला था, उसकी कोई जमात नहीं अकेला थी, आदमी मगर इसने अब अपनी जमात बना ली। बना ली ना, बना ली। अब उसी चीज को तुम इन लोगों की आवाम से समझाओगे कि किस तरह शैतान लूटता है, तो उस चीज को धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा कि हाँ इस तरह लूटता है शैतान। जी, और लूटने के कितनी बजाय ऑडियो तुम्हें तो भाईजान बहुत सारी आपने? पता है। जी, जी आपने कितनी ऑडियो सुनी है? कि मैंने लगभग सुनी होंगी, लगभग 30-35, या मतलब गिनती नहीं है। अच्छा अच्छा। अब देखो कुछ लोग मुफ्ती लोग भी हैं इनके, अब मुफ्ती लोग जो हैं तो वो तो उनके दिलों पर लग चुकी है मोहर, वो तो मानेंगे नहीं। और लेकिन जो आवाम है, अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई इनका मुफ्ती लोग मुझे फंसाएगा तो जाहिर सी बात है मुझे तो इतना इल्म है नहीं, मैं फंसता चला जाऊंगा। सही बात है। ठीक है। लेकिन जब इनकी आवाम को तुम उस तरह से, जिस तरह से गेल उठते हैं ईमान हो, तुम उनको इस्लाह कराओ उनकी इस तरह से, हाँ तो उनके समझ में भी आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह। तो जी, ऐसा नहीं है कि सब मुहर लग गई देखिए, है। हाँ जो देखिए, ये जमीनी काम भी किया मैंने जी मैंने जमीनी काम भी किया, यानी सामने से बात की लोगों से, जी लोगों को बताया, समझाया, बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत सारी दिक्कतें सामने आई हैं, नहीं तो बहुत मैं सी वही अच्छी बुरी बातें सुनने को मिली हैं। जी समझे हजरत? जी समझ गया। फिर मैं हाँ, हजरत नहीं, मैं तो मतलब ऐसे ही एक स्टूडेंट हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी किए हुआ हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। कौन से क्लास में है, क्या पढ़ाई है चल रही है मैं आपकी? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, BA फाइनल हूँ। बीए फाइनल है। तो अब जो आपकी लाइन है, जो आपकी मंशा है, वो क्या है, क्या आगे वो नहीं करना चाहते हैं? मैं इस टाइम तो मतलब पढ़ाई छोड़ दी मैंने फिर बाद में। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी, जी मतलब तो फिर कर क्या रहे हैं आप? जी, क्या कर रहे हैं फिलहाल? फिलहाल तो ऐसा समझो जो घर की खेती बाड़ी है उसको देख रहे हैं, वो जो थोड़ा बहुत अपने जो होता है दुकानदारी का काम, थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा बेचने का काम, उससे बस अच्छा, गुजर बसर देखिए, जब चलता है। आपने इतनी मेहनत की है, जी, तो आप किसी लाइन में पढ़िए, पढ़ाई की लाइन में। पढ़ाई की लाइन में पढ़िए, डॉक्टरी की लाइन में पढ़िए, कुछ भी कीजिए। डॉक्टरी भी मैंने लगभग 3 साल मतलब सीखने के बाद में फिर नहीं की करी फिर बाद में, क्योंकि अच्छा, डॉक्टरी के लिए डिग्री होना जरूरी है, डिग्री तो के लिए हजरत उतना डिग्री पैसा हासिल भी करें। नहीं है, टाइम भी नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ये बात है। हाँ, वो सबको अपने अपने सबका वो ये हाँ, तो, हाँ तो इनके कुछ जो सीधी आवाम है ना, वो मेरे हिसाब से तो लगता है कि अगर चलिए, सही से इतना होने के आप, बाद में अगर नहीं हाँ हाँ, मानता तो आप फिर अपना ठीक कुछ है भी काम कर सकते हैं, ये पढ़ाई आपको काम ही आएगी। जी जी, वही तो बता रहा हूँ हाँ जी। मैं। इल्म तो तो इल्म है, कोई जरूरी कोई है कि इल्म से दुनिया या मतलब कोई नौकरी लगे, कोई जरूरी नहीं। नहीं, देखिए, मैं तो इस नियत से कह रहा था कि आप सुन्नी मुसलमान हैं, जी तो मोमिनों की आप मदद भी कर सकते हैं डॉक्टरी हाँ के जी जरिए। जी बहुत से गरीब लोग ऐसे आ जाते हैं कि उनके पास इलाज हाँ का पैसा नहीं होता है। जी जी, लेकिन मैं मतलब वही तो जितने, बता रहा हूँ। हाँ, जितने लोगों से मेरी बात होती है, कोई किसी अच्छे ओहदे पर होता है, जी कोई किसी अच्छे काम में होता है, ठीक है, जी मैं उसको यही सलाह देता हूँ, मगर मुसलमान होना शर्त है। मोमिनों जी की ही मदद करो, जो जी, गुस्ताखे रसूल हैं उनकी मदद ना की जाए। सही बात है जी, बिल्कुल हाँ, सही बात। जो अब गैर मुस्लिम है उसकी भी कर दो। जिसके लिए दिल में जो गैर मोहब्बत होगी मुस्लिम है ना, तो मदद जो, करेगा ही। हाँ, जो गैर मुस्लिम है ना, जो घंटी बजाता है ना मंदिर में जाके, वो बेहतर चाहो है तो इनसे, उसकी भी मदद कर दो, मगर इन किसी लोग गुस्ताखे रसूल की मदद नहीं। इन लोगों से बेहतर है। यानी मैं खुल के बोल दूं, वहाबी देवबंदी की एक लम्हे के लिए भी मदद नहीं, क्योंकि वो कहते समझ हैं रहे कि हो, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। मेरे गांव में कोई एक भी नहीं है मेरे गांव में। माशाअल्लाह। तो मेरे गांव में क्या, मेरे कुनर की में तो होंगे, मगर कुनर की से धीरे उधर के 7-8 गांव एक भी नहीं है। हाँ, एक हजरत मेरे साथ और हैं, मैं भूल ही गया,
आपको। जी जी हजरत जी सर। बात कुछ इनका समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। नहीं कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बहुत गौर से सुन रहा हूँ मैं। हाँ बहन जो बात कर रहे हैं मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ उनकी बात। ये हमारे हजरत हैं मौलाना, क्या नाम बता रहे थे, मौलाना राशिद साहब। राशिद नईमी जो है, राशिद नईमी साहब जामिया नईमिया से फारिग हैं हजरत। जामिया नईमिया से फारिग हूँ मैं, मुरादाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जहाँ से आप फारिग हैं ये वहीं से बोल रहे हैं? हाँ मैं फिलहाल यहाँ रहता हूँ हजरत, जो क्या नाम है, जिला बलरामपुर में मेरा मदरसा है खुद का। अच्छा माशाल्लाह मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रजा। माशाल्लाह। और मैं अवाम नास के लिए जो है इस्लाह के लिए किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 23 किताबें अब तक लिख चुका हूँ माशाल्लाह आपकी दुआओं से, और इनके रद में भी कुछ किताबें मैंने लिखी हैं माशाल्लाह। समझे। हाँ तो यही काम रहता है मेरा। तो मैं कल आपका परसों सुन रहा था तो बड़ी मुझे खुशी हुई सुनकर। अच्छा हजरत जी। समझे। हाँ तो मैंने कहा कि ऐसे लोग हमारी जमात में होना जरूरी है। जी बेशक। तो हजरत एक इल्तिजा है आपसे, जी फरमाइए। कि इस नाचीज की कहीं आपको इस्लाह की जरूरत पेश आए तो मेरी इस्लाह भी करें, और अगर आपको नागवार ना गुजरे। जी इसी के लिए मैंने फोन किया था हजरत आपको। अच्छा हजरत, आपको अगर नागवार ना गुजरे तो मुझे आपके जैसे आलिमों की मदद की जरूरत पड़ती रहती है हजरत। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके की मदद चाहिए, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ हजरत, वो मुझे बस एक दर्द को लेके मैं काम करता रहता हूँ। जी 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 हाँ, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों से निकला हूँ तो मुझे दर्द है सुन्नियत का। मालूम हुआ मुझे। 15 साल 14 साल अपने जो है वहाँ काटे इन लोगों ने। हाँ समझे। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग नावाकिफ हैं, अनजान हैं, बेखबर हैं, लाइल्मी में इन लोगों के साथ हो जाते हैं, जी जी, तो बस वो लोग बच जाएं, रुक जाएं। उनको इल्म होगा तभी तो बचेंगे हजरत। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इल्म नहीं होगा तो चले जाएंगे, जैसे मैं चला गया था। जी जी। हाँ तो मैं बस उन भाइयों के लिए काम करता हूँ जो सुन्नी हैं, वफादार रसूल हैं, जो धोखे में उन लोगों के साथ हो जाते हैं। मेरा जो मकसद है वो यही है कि अगर उनमें से कोई आना चाहता तो आ जाए, हमारा दरवाजा खुला है। जी 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 जी, हमारा दरवाजा बंद नहीं है, खुला है। जी जी, तौबा करो, आ जाओ। जी जी, मगर हमारे लोग ना जाएं। जी हाँ, ये है कि अपने लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। जी हजरत, अपने लोगों को रोकना। जिस तरीके की नूरुल हसन भाई आपको हमारी जो है मदद चाहिए, जिस तरीके भी यार रात के जो है 12 बजे 2 बजे चाहिए, हम हर तरीके से हाजिर हैं। जी कई सारे मसले ऐसे पेश आ जाते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ हजरत। जी जी, मैं सुन रहा तो था आपका जो है उलमा की, हाँ उलमा की बारगाह में वो चीजें पेश करता हूँ और मैं बोल भी देता हूँ। हालांकि मैं जो चीजें जानता हूँ उसका भी मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि अगर मेरे बताने में थोड़ी बहुत भी कमी बेशी हो गई तो इसका जो है मुझे बहुत भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। जी जी जी, नुकसान उठाना पड़ सकता है। परसों मैं सुन रहा था वो मुहकम और मुतशाबे जो आयत जो है माँ के पेट में किया है जी, तो आपने उसमें जिक्र कर दिया था मुतशाबे है, तो मैं सोचा कि नूर हसन भाई से इंशाल्लाह जो है मैं बात करूंगा, समझे। हालांकि मुहकम आयत है। कौन सी वाली है? अरे वो कुरान शरीफ में जो माँ के आपने उलूम खमसा के बारे में बताया था कि माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, तो आपने ये कह दिया था कि वो मुतशाबे आयत है। तो वो उधर से जो है बदअकीदा ये कह रहा था कि नहीं मुतशाबे नहीं मुहकम है, तो आपने कहा बकौल मैंने आपके मान लिया। वो मैंने उसको घुमाया है। अच्छा अच्छा, हाँ हजरत, मैं इनको उलट पलट का मारता हूँ। मैं वो जो बच्चे चिड़िया को मार के जो गोबर सुंगाते हैं ना, जी जी, एक बार आपने ये भी सुना होगा कि कोई देवबंदी मुझसे किताब का नाम पूछ रहा था। मैंने कहा यार किताब का नाम भी पूछोगे, वो नाम याद ना हो तो बहुत जोर से हंसा। जी हाँ जी जी, शायद वो आपने गुफ्तगू नहीं सुनी होगी, रसादी उसका नाम था, और वो मेरे आला हजरत को माज़अल्लाह अंग्रेजों का एजेंट बता रहा था। अच्छा, मैंने कहा चल साबित कर, तो वो साबित तो नहीं कर सका। मैंने कहा मैं साबित करूंगा कि तेरा रशीद अहमद गंगोही अंग्रेजों का एजेंट था, बिल्कुल, तेरा अशरफ थानवी अंग्रेजों का एजेंट था, मैं साबित करूंगा। तो बोला साबित करो। अरे मैंने कहा छोड़ यार, उसको रहने दे, तू जिस वजह से तूने कॉल किया है वो बता मुझे। जी जी, तो बोला ना ना ना, अब तूने ये बात छेड़ी है तो इसी बार बात हो गया। अरे मैंने कहा छोड़, रहने दे। तो शायद वो ये सोच रहा था कि इसको इस पे जानकारी नहीं है, इसको मालूम नहीं। तो फिर मैंने उसको पहले उसके हवा भरी, पहले उसको ऐसा महसूस होने दिया कि ये सोचे कि इसको जो है ज्यादा जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है। फिर वो सफा उफा पता नहीं क्या क्या पूछने लगा। तो मैंने कहा अरे यार ये बताना जरूरी थोड़ी है। तो बड़े जोर से जो है वो हंसा। मैंने कहा हंस मत,
उस फैमिली में था। मैंने कहा सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो जी जी हाँ, और कभी कभार मैं ऐसा करता हूँ जैसे वो बताता है और हाँ हाँ करता है तो मैं उसको फूकने में हवा भरता हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। जी। पहले उनको फुला देता हूँ, फिर उसके बाद में सुई भोगता हूँ। कल मैंने ऑडियो सुनी, मुझे बड़ी हंसी आई। एक साहब ने 2 मुफ्तियों को अपनी लाइन पे लिया तो उनको वो हिफ्जुल ईमान का पता ही नहीं था। आपने कहा कि आप मुफ्ती हैं तो कहा कि आपको ये किताब नहीं मालूम है। यानी उसने 2 को मुफ्तियों को लिया अपने लाइन पे, जी। तो एक की तबीयत खराब निकली, एक को पता नहीं था। तो आपने कहा कि भाई मुफ्तियों को नहीं पता है। बिल्कुल सही बात है, जो देवबंदी होगा जाहिर बात है उसको पता होगा तमीज पता है, ईमान के बारे में। बस ये डरते हैं इस किताब के नाम से ही। जी जी, मैं सुन रहा था वो काफी देर की आपकी ऐड होती है, 1 घंटे की कम से कम। मैं उससे मना कर रहा था, मैं बात नहीं करूंगा। जी 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 जी। हाँ तो मैंने सोचा लाओ नूर हसन, मैं रात ही फोन लगा रहा था तो रात आपका मोबाइल बंद बता रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ मैं एक जगह प्रोग्राम में था। जी, व्हाट्सएप पे मैंने 2 भेजे आपके पास से। अच्छा तो व्हाट्सएप पे भी आप पे ऑन तो था व्हाट्सएप आपका, जो रिसीविंग नहीं हुई उसकी फिर। अच्छा, तो मैसेज बहुत ज्यादा हैं और अच्छा अच्छा। हाँ मैं बहुत सोचा ज्यादा लाओ आए किसी हुए हैं, टाइम मैं निकाल देख के नहीं जो है। पाया, सफर में ही था मैं। और सब हालात सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है हजरत, और आपकी दुआओं की बिल्कुल खास जी जी, तवज्जो खास चाहता हूँ करके। और बिल्कुल आपका बिल्कुल साथ भी चाहता हूँ। बिल्कुल, और अल्लाह ताला बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई फरमाए। सारे उलमा ऐसे हैं जो मेरी सरपरस्ती फरमाते हैं, जो मेरे सर पे हाथ रखे हुए हैं, जी 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 और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा भी। जी। हाँ ये मुझे अंदाज आपका बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई सलाम करता है तो आप उसका जवाब नहीं देते। नहीं, होना चाहिए हजरत, ये हमारे नहीं, उलमा भी बिल्कुल बोलते चाहिए। बिल्कुल हजरत, मैं नूर हसन भाई बिल्कुल मानता हालांकि हूँ इस चीज को। हालांकि फतवा अभी ये है, हालांकि जी जी फतवा तो ये है कि अगर कोई सलाम करता है और हमको जानकारी नहीं है, उसके सलाम का जवाब दे देना चाहिए। जी 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 हाँ, जी। तो फतवा मैंने अभी मुझे एक मालूम मौलाना है, साहब थे अगर जी हाँ जी, तो मैंने उनसे भी आपके बारे में जिक्र किया तो कहा कि चलो ठीक, किसी टाइम लगाओ फोन तो बात करते हैं भाई। अच्छा मैंने कहा अच्छा बहुत जो है, मैंने कहा पक्का जो है टीटीएस बिल्कुल जो है, और मैंने कहा हमारे इलाके के हैं, समझे। अब ये है कि कभी इंशाल्लाह उनसे मैंने मौलाना साहब से कहा, मैंने कहा फेस टू फेस बात करूंगा जाके कभी मैं जाके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रामपुर मेरा आना जाना रहता है, रामपुर मुरादाबाद में 9 साल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा समझे, और माशा अभी 8 दिन पहले ही आया हूँ उधर से मैं, अच्छा अच्छा समझे, अपने मदरसे पे जो है। मैं इंशाल्लाह आपकी बारगाह की किताबें कुछ मेरी जो हैं तो मैं पेश करूंगा आपको, अच्छा हजरत, समझे। जी हाँ, बिल्कुल, आप मुझे सिखाएं मैंने इनके पढ़ाएं, बारे मुझे में एक अपना किताब शागिर्द लिखी है। बना लें। जी, जहन्नमी समझे कुत्ते हजरत? की किताब का नाम रखा है मैंने। क्या चीज? इनके रद में एक किताब लिखी है मैंने, किताब का अच्छा नाम रखा है जहन्नमी कुत्ते। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत और अच्छा एक हजरत। अपनी आवाम की इस्लाह के लिए लिखी है, उसका किताब का नाम रखा है खुराफात का तूफान और आज का मुसलमान। माशाल्लाह, सही ना नाम हजरत? बहुत अच्छा नाम है, हाँ, तो अभी किताब इंशाल्लाह बहुत जल्दी मंदिर में आ खुराफात रही का है दोनों। तूफान। वाकई इन लोगों ने तो जी तूफान क्या, महा तूफान मचा रखा है। पूरा बिल्कुल, हाँ वही तो। अब ये है कि हाँ, और काम मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा आपका। जी अल्लाह के रहमो करम से जी जी इन शैतानों में जलजला बर्पा हो चुका है। ये जी मेरे कॉल को उठाना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे कभी जी। जरूरत पड़ती है तो मैं डायरेक्ट देवबंद कॉल करता हूँ। अच्छा। जी हाँ, कि और जब करता हूँ जब इनके चिल्ले के पिल्ले मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जी जी जी। किसी ऐसी तो बात मैं को लेकर आते हैं जिसका। ये कह रहा हाँ था, जैसे एक मैं ये चीज अपना जो है नाकिस मशवरा है मेरा, जी मैं अर्ज करूं जी जी कि हजरत, ये इनकी जो किताबें, जो असल किताबें जो हैं वो तो आपके पास होंगी सब। जी 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 ये बहुत अच्छा है आपने किया है, इन्हीं की मकतब की किताबें सब रख लीजिए, जी हजरत। और बाकायदा सफा नंबर और क्या नाम है आप अपने पास हवाला नोट रखिए इनका, जो है एक डायरी में जो है, हाँ, ताकि एकदम अगर कोई जैसे हिफ्जुल ईमान जो आपने हवाला दे रहे थे बार बार सब जो है दिमाग में फिट है हजरत। ना, बहुत अच्छी है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मुझे तो ये सुनकर, बहुत मैं खुशी हुई बगैर मुझे। किताब देखे ही सारे हवाले बताता हूँ। जी जी जी, बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। हाँ जी हाँ, तमीद ईमान शरीफ को भी मैंने सरकार आला हज़रत तआला रहमत व रिजवान की जो किताब है तमीद ईमान शरीफ, जी बहुत हार्ड किताब थी, अवाम कहाँ पढ़ पाती थी इसको, जी 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 जी। तो मैंने उसको आसान, बहुत आसान करके निकाला है मैंने इसको। अच्छा, मंदिर यहाँ पे है वो किताब भी, उसमें अरबी मतन पे एराब भी नहीं थे, वो भी लगवा दिए हैं, माशाल्लाह और माशाल्लाह। 3000 की तो तादाद जो में मैंने आपकी इसको किताबें निकलवाया हैं था। हजरत, इनके रद में जी 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 वो जी। कहाँ मिलेंगी? मेरे मुरादाबाद अगर आपका जाना हो तो गागन इलाका है ना, गागन दिल्ली रोड पे, हाँ, गागन रोड पे हमारा छोटा भाई मुजाहिद है, अच्छा, हाफिजो कारी और आलिम का कोर्स कर रहे हैं इस टाइम, माशाल्लाह। तो समझे, तो हजरत वो उनके पास अगर किताबें हैं।
अगर वो मुझे ऑडियो ऑफिस पे मिल जाएं तो बहुत ही जी मेहरबानी होगी। तो जो आपकी नज़र में बेहतर किताबें हो तो जी जी आप जी मुझे इनायत फरमा दें, और बिल्कुल उसका जो बिल्कुल। हदिया हो वो भी मुझे बता दें। हदिया हजरत किताब पे लिखा हुआ है दुआएं। अच्छा, दुआएं। 23 किताबें हैं मेरी अब तक। हाँ। जिसको भी मैं देता हूँ किताब तो कहता हूँ बस दुआ कीजिए मेरे लिए, बस सिर्फ। हर किताब की कीमत मैंने डाल रखी है, अच्छा कीमत दुआएं। अच्छा अच्छा, उसका कोई माशाअल्लाह। कीमत नहीं है। हर चलिए, यानी अल्लाह 23 तबारक व किताबें मेरी तआला। खुद की हैं, अच्छा अच्छा। और 10 किताबें सरकार आला हज़रत तआला रहमत व रिजवान और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल रहमत व रिजवान की निकलवाई हैं मैंने। माशाअल्लाह यानी कुल माशाअल्लाह। मिला के 33 किताबें हैं। 33 किताबों पे कीमत दुआएं पड़ी हुई है। आप माशाअल्लाह उसको देख सकते हैं आप जो है। अच्छा, एक ताहिर रजा कादरी साहब हैं हमारे, बार बार कॉल कर रहे हैं, कॉल कट जा जी रहा जी बिल्कुल कर लीजिए, मैं है। इंशाल्लाह जो आपकी फिर बात करूंगा। अच्छा ठीक ठीक है। है, इंशाल्लाह बिल्कुल हजरत। और जी जी आपकी हाँ तवज्जो का जी मैं तालिब हूँ। जी जी। आप इस दुआ नाचीज को अपना शागिर्द बना लीजिए। बिल्कुल दुआ में याद रखना, और खास कर दुआओं की हाँ, इल्तिजा है मुझे आपसे। जी मतलब ऐसे उलमा की सख्त जरूरत रहती है जिसको दीन की फिक्र है, दीन का दर्द है, बिल्कुल जो बिल्कुल, होना भी मसलक चाहिए, आला होना भी हजरत, चाहिए। जो मसलक आला हजरत पर कायम है, जो मेरे जी जी आला हजरत की सोच लेके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो मेरे तो आला इस वक्त हजरत का हजरत दर्द कहाँ हैं अपने। आप? इस वक्त कहाँ हैं? हजरत मैं अभी फिलहाल अपने घर पे ही हूँ, रामपुर काशीपुरांगा। जहाँ मैं मुझे मालूम है, वो तो मुझे जी। मैं सोचा हो सकता है गाड़ी वगैरह पे हूँ आप, नहीं हजरत, बस मैं कहीं क्योंकि निकल मैंने ही तो रहा आपकी था तो मोहब्बत ये आपका कॉल आ देखी। गया। जी। मैंने आपकी मोहब्बत तो ये देखी कि गाड़ी पे आप आए तब भी बात हाँ कर लेते हैं लोगों हाँ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर वक्त बात करने के लिए इन जी लोगों जी से तैयार रहता हूँ, और कभी जी मना भी जी करता हूँ, और अगर ये नहीं मानते अल्हम्दुलिल्लाह तब भी जी वही धो देता हूँ इनको। जी। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा फरमाए, और ज्यादा बस से ज्यादा जो आपकी है दुआओं बातें। की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत है खास मुझे। करके दुआ। और मैंने परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मरतबा देखा है आपका, अच्छा, और मुझे जामिया मालूम नहीं आज़ाद था। मिस्र यूनिवर्सिटी से भी कॉल आया इस नाचिज के लिए। वहाँ के एक बहुत माशाअल्लाह। बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आलिम हैं जो किताबें लिखते हैं। बोले जी जी बेटा जी। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, साल डेढ़ साल हो गया उन्हें अच्छा कॉल किए अच्छा। हुए। हाँ, तो बोले जी बेटा मैंने आपका अंदाज देखा, जी। और जिस अंदाज से आप बात करते हो बड़ा प्यारा अंदाज है, और जो उसका घिराव करते हो वो मुझे बहुत पसंद आया। अंदाज ही तो मैं अंदाज को देख के ही तो मैंने आपके पास कॉल की है। बोले अंदाज इसी मुझे तरीके बहुत। से उलमा को भी काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस इलाके में करता हूँ काम, जो है आप लोगों की बस दुआओं से जो है। हजरत मेरा ये कुछ नहीं है, बस आप जैसे हजरात की, उलमा की और बुजुर्गों की ये दुआएं हैं। जी जी जी। हाँ मैं ये सोचने लगा रात में जो है फजर की नमाज के बाद जो है, जी जब नमाज पढ़ ली मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। जी। मैंने सोचा नूरुल हसन भाई के अंदर वाकई में बड़ी हिम्मत है जो है, इनके मुफ्तियों को भी लाइन में ले लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हजरत मैंने तो जी जी ऐलान किया है, चैलेंज है मेरा, जी जी कि जी जी। तुम्हारी पूरी दुनिया में कोई अभी तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो मुझसे बात करके अपने आप को सही साबित कर दे। लाओ बुला जी के जी। लाओ, तुम्हारी पूरी दुनिया का सही जो भी है। सब में बड़ा आलिम हो, मेरी बिल्कुल बात को बिल्कुल सुन सही ले है। और समझ ले, और अपनी बात मुझे समझा दे। बिल्कुल सही बात है, हक पर हैं तो हम हक वालों को तो जो चैलेंज करना ही चाहिए बिल्कुल, और जी हजरत। घंटी चोट पर करना चाहिए। और मैंने अपने गांव से ये काम शुरू किया है, जी और शुरू में मुझे बड़ा उलझाया जाता था, बड़ा इधर जी उधर की बातें सुनाई जाती थी, जी और मुझे बड़ी धमकियां भी मिलती हैं। जी जी। हाँ फ्री में वो धमकियां सुना भी था सुनता मैंने। हूँ। हाँ, बड़े पुलिस जी वाले भी कॉल करते हैं, वकील भी कॉल करते हैं, ग्रेजुएट भी कॉल करते हैं। जी हाँ, हर तरह से मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई, मगर मैंने कहा जी ना, जी अगर मैं गलत हूँ तो आओ सामने आओ पहले। जी। मैं सुन रहा था आपका, जो एक साहब जो हाँ बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, अगर मुरादाबाद की थे वो। हाँ जी जी जी, वो जी। ग्रेजुएट हाँ था कमीना। हाँ। तो बाद में फिर वो लाइन था क्या? फिर उसने माफी भी मांगी है हजरत बाद में। जी 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 जी, मैंने पूरा सुना था, पूरा सुना था मैंने अच्छा वो। अच्छा, हाँ तो माफी भी मुझे बहुत मांगी। ज्यादा गर्म हुआ था। हाँ, गाली गुफ्ताली की बमबारी कर दी उसने शुरू में आते ही, जी जी हाँ, मैंने तो और सुन रहा मैंने था प्यार जब से तक। सुन ली। मैं कल भी मैंने सुन कुछ रहा था नहीं आपका बोला ये जब वीडियो। तक, और जब वो गाली बक के ठंडा हो गया फिर मैंने दिया जी। उसको दबा के। मुझे भी बहरहाल अंदाज बहुत अच्छा लगा। आज ही मैंने जिक्र किया कि मौलाना साहब हैं हमारे, मौलाना बजाज साहब, हाँ समझे। तो मैंने कहा अपने नूरुल हसन बरकाती रजवी हैं, बहुत बढ़िया हैं, समझे। मगर ये कि उलमा से, सुन्नी उलमा से जो है, बरेलवी सुन्नी बरेलवी जो है हनफी उलमा से मोहब्बत करते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। मगर जी ये कि अगर आप भी अगर कॉल करेंगे तो आपके सलाम का जवाब नहीं देंगे जब तक आपका माल निकालेंगे। हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे तो उनकी बात सुन इससे के। पहले भी आपका कॉल आ गया था, शायद मैं बिजी था हजरत। जी जी जी, मैं वो लगा रहा था आपको कॉल, मैंने सोचा बात लाओ दुआ सलामी कर लूँ, कुछ ज्यादा लंबी बात ना हजरत हो क्या सके तो। बताऊं, सुबह से लेके और रात कम से कम 1-2 बजे तक लोग कॉल ही करते रहते हैं। जी एक जी मालूम है। एक कॉल चलती होती है तो कई सारे फोन आते होते हैं। जी जी हाँ, हाँ। आपको एक दिन मेरे इंशाल्लाह मैं साथ कोई रह किताब जाता जी है तो वो जी। उसके सर में दर्द होने लगता है, और मेरे बोलते हुए सर में दर्द नहीं होता। ये अल्लाह का फजल है।
वरना अल्लाह एक का फजल तो हाफिज है। भी इतना नहीं बोलता होगा जितना मैं सुबह से शाम जी, तक बोलता मेरे सरकार आला हज़रत रहमा का फैज है। हूँ। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है हजरत। और कुछ नहीं, फैज है सब हज़रत इसमें का। मैं जब जी अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हुआ था, जी तो उस जमात से निकल के मैं हुजूर आला हजरत की बारगाह में ही पहुंचा था, और अल्लाह जी तबारक व जी तआला से दुआ भी मैंने यही की थी। जी 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 हाँ कि अल्लाह मैं तेरे वली की बारगाह में आया हूँ, इनका कुछ फैज जी अता फरमा। बिल्कुल, वही है जी फैजी है मेरे सब सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह रिजवान बेशक। का, ये सब फैज है और कुछ हाँ नहीं है। जी। मेरी भी हर महीना 2 वरना महीने एक में गैर हाजिरी होती आलिम, रहती है। एक गैर आलिम कहाँ इतनी बात कर सकता है हजरत। बस जिस पे फैज हो जाए तो उसके लिए भी क्या कहने का, जी। समझे। अब भी जिस तरह कुछ के एक लोग और आला हजरत के मुरीद थे जो पढ़े जी लिखे तो नहीं थे, मगर उनको आला जी हजरत रहमतुल्लाह ने खलीफा बना दिया था, जी जी खिलाफत अता की थी। तो लोगों ने कहा जी कि अरे हजरत ये तो पढ़े भी नहीं है, आपने इनको खिलाफत अता फरमा दी। जी मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं उनका वाकया। जी। अच्छा हुजूर अगर आला, वो जो जी जी हाँ फरमाए फरमाए। चलिए, वो जो उस दिन आप वो जो हवाला दे रहे थे उनको हिकायत औलिया का, तो बार बार वो ये कह रहे थे कि नहीं उसका आप जो ये लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है, ये लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है दिखाइए, तो आपने उसमें एक लफ्ज बोल दिया था गोरा चिट्टा। वो मुफ्ती उमर समझे? कासमी के, हाँ हाँ मुफ्ती जी उमर जी जी कासमी से हाँ बात हुई। हाँ, तो आपने हालांकि भेजा भी था, समझे, जब सरकार दो आलम सल्लम को जब ये इल्म नहीं है तो ये आम उम्मती को कैसे हो गया। हाँ आपने बहुत अच्छी गिरफ्त की थी उसकी, अरे समझे। उसको तो पसीने आ गए, वो 4 बार फोन काट के भागा हजरत, वो जी जी, मुझे मैं सुन रहा था, समझाने मुझे आया था। बड़ी हंसी आ रही थी मुझे सुनकर जो है। मैंने कहा हवाला चलो बढ़िया दिया, हिकायत औलिया इन कमीनों की किताब है, समझे। हाँ और भी इनकी कुछ किताबें हैं जो है हाँ, कई सारी किताबें हैं, फतावा रशीदिया में भी है कि मौलवी हाँ रशीद कोई और जी कासिम जी, ननौतवी एक के घर वो है पहुंच एक जाते आपके हैं। पास किताब अरवाह सलासा किताब है इनकी। इसी का नाम हिकायत औलिया का ही नाम अरवाह सलासा है। अच्छा 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 अरवाह सलासा और अच्छा, जी हिकायत जी जी, औलिया ये अच्छा अच्छा दोनों एक ही किताब के नाम है। अच्छा, तो इन्होंने अलग अलग इसका मतलब छाप दिया है क्या। अरे हजरत अलग अलग की बात तो छोड़ो, अब तो ये इबारतें कहीं के कहीं पहुंचाने लगे और अच्छा इबारतें तो भी चेंज करने लगे। और जो हिफ्जुल ईमान है, जी 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 इस किताब की जो इबारत थी माज़अल्लाह, उसको भी चेंज जी, कर दिया। अच्छा और तकबियतुल ईमान में जो इबारत थी माज़अल्लाह के हुजूर के ताल्लुक से झूठ बोला जी गया, तो हुजूर ने जी कोई ऐसा फरमाया, उसको भी जी चेंज कर दिया, उसको भी तब्दील कर दिया। जी और जो किताब है मकालिमत सदरैन, उसको तो छापना ही बंद कर दिया। जी जी। जी चलिए, अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए आपके ऊपर जो है, और जी सरकार आला हज़रत रहमत व रिज़वान का फैज़ जारी सारी रखे, समझे। बस ये है कि मेरी दुआ यही है, बस काम करते रहिएगा बेहतरीन तरीके से। और और मेरी रहनुमाई फरमाएं, और जो पॉइंट है, जो मुनाजरे के जो कुछ जो नुक्ते होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह जब आपसे बात करता रहूंगा जो है, जी 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 मैं हजरत। पहले तो आपकी ऑडियो रात में सुना करूंगा 1-2 घंटा कम से कम, समझे। हाँ जी अब जी जी उसमें जब वो जो देखा करूंगा तो इंशाल्लाह जो है मैं आपसे जो है संपर्क किया करूंगा जी जी जी। कि कुछ वो लोग ये मुझे पूछ रहे थे ना, बताते वो हैं। कुरान की आयत पढ़ के जो है फौरन इसका तर्जमा कीजिए, आपसे पूछ रहे थे कल जो है ये कुरान का तर्जमा हाँ कीजिए, तो आपने पलट कर दिया कि आप ही कर दीजिए, जी समझे, आप ही कर दीजिए। आपने अच्छा जवाब दिया कि चलिए ठीक है, मैं आलिम नहीं हूँ, समझे। हाँ हाँ आप अब उसने कहा कि मैं अगर देवबंदी करूंगा तर्जमा देवबंदी वाला, समझे, हाँ तो आप मानेंगे नहीं, उसको कहने लगा, हाँ हाँ समझे। तो अब ये मैंने ये तो हिसाब बनाया कि आपका जो ऑडियो रोज डेली मैं 1-2 सुना करूँ आपका, जी 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 हजरत। उसमें और कुछ मैं कहीं मिलेगा। कहीं खामोशी इसलिए इख्तियार करता हूँ कि उसमें जी, मैं कुछ हिकमत अमली समझता हूँ। वो भी जरूरी है सर, वो भी जरूरी है। वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं कहूँगा तो इनके जी वाले लोग जो हैं वो माने ना माने कोई पता नहीं। जी जी जो मुजब्जब लोग हैं, मेरे कहने जी से पता नहीं माने ना माने, मगर ये जी जब जी बोलेगा तो जरूर जी मानेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं हाँ, कहता नहीं, कहलवाना चाहता हूँ। ना बहुत अच्छा है जो है। हाँ कल एक हजरत। इंजीनियर साहब आपके लाइन पे थे, बहुत ज्यादा लंबी बात हुई थी इंजीनियर साहब से आपकी। हाँ कल मैं बहुत सुन रहा सारे। था। अच्छा हाँ, चलिए ठीक, इंशाल्लाह जो मैं आपसे जो है राब्ता रखूंगा। अच्छा अच्छा, वो अच्छा इलेक्ट्रिकल जी इंजीनियर तो नहीं जो हमारे इलाके जी का ही जी, था हाँ हाँ, वो असल में आपने कहा था कि लास्ट जो में। तार अगर हाँ न हाँ जुड़ा हो हाँ तो क्या। जी। बाद में फिर वो उसका जहर असल में सामने आ गया था, आपने कहा हाँ कि आपका हाँ जहर जो था वो सामने आ गया, जी समझे। हाँ, अब तुम मेरे कहने मतलब कैसी मोहब्बत कर रहे हो, तुम कह रहे हो नबी से मोहब्बत है, और जो नबी की हाँ शान में गुस्ताखी कर रहा है उससे भी दोस्ती किए हुए हो, जी तो कैसी न मोहब्बत है भाई, हमारे समझ में ये नहीं आती। ये आप जी सही जवाब देते हैं भाई। जी। हाँ, मैं और मैं तो उजागर करना चाहता हूँ, जी जी पर्दे के जो पीछे छुपे हुए ना, पर्दे के सामने लाना चाहता हूँ हजरत। जी बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं, बहुत अच्छा है ये, हाँ, और आपकी समझे। रहनुमाई की मुझे सख्त जरूरत है, जी आप जैसे उलमा की सख्त जी जरूरत है।
बिल्कुल इंशाल्लाह जो है मैं अभी वो जो है आपकी ऑडियो सुना करूंगा और जो है मैं आपसे जो संपर्क भी रखूंगा, समझे। जी जी ये बिल्कुल। मुफ्ती सुलेमान साहब जामिया नईमिया, मुफ्ती यूब साहब, अल्लामा हाशिम प्रोफेसर हाँ जामिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी साथ कभी फंस जाता हूँ मैं, तो जी मुफ्ती सलमान जामिया नईमिया में जो है, सुलेमान। जी जी मुफ्ती सलमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मैं राबता करता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। जी कुछ भी कभी भी कुछ मुझे मालूम करना होता है कॉल कर लेता हूँ। जी और मुफ्ती हम्माद साहब को भी किया है कई बार, जी मगर उन्होंने जी। मेरी रहनुमाई नहीं की। अच्छा उनको मालूम ही नहीं है कि ये बंदा है कौन, तो क्या रहनुमाई अच्छा। करते हाँ ये सारे मेरे असातिज़ा में से हैं। हैं। जामिया अच्छा जामिया नईमिया का पूरा स्टाफ जो है, जी। और मैंने वहाँ से एक मरतबा रिसाला भी मुझे शायद किया शिकायत था रहती है, मुझे शिकायत रहती है अपने उन उलमा से भी जी। कि अगर आवाम का भी बंदा है और कुछ पूछ रहा है तो उनको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल, और क्या है, जरूरी है खाली भाई। हाँ खाली इसको प्रोग्राम के लिए मत रखो, कि साहब जी जी प्रोग्राम में जाएंगे वहीं बताएंगे। जी। हाँ जैसी भी मेरी मदद हो आपको नूर हसन भाई, तो आप फौरन संपर्क कीजिए। इंशाल्लाह। और मैं आपके और अपने जरिए जो आप भी पैगाम दे दीजिए कुछ उलमा के लिए, जी बिल्कुल ताकि बिल्कुल हमारी जो आवाम बहक रही है वो जी बहकने जी से बच जाए। कुछ तो जिम्मेदारी हमारे अपनी उलमा मैं की जी सख्ती की वजह से, जी जैसे किसी ने कोई मसला पूछा तो नहीं बताया, या अगर मसला उन्हें मालूम है तो खुद उनका अपना अमल नहीं है, दूसरों कैसे कह रहे हैं वहाबी देवबंदी से बचो, खुद बचते नहीं है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल जो मेरी अपने उलमा से भी कुछ शिकायतें हैं, मगर वही बात है कि दर्द शिकायत है ये जी। हाँ हाँ, मगर अंदर मैं से बड़ा कभी कभी मैं घुटता हूँ हजरत, जी अंदर से दिल रोने जैसा हो जाता है। बिल्कुल वही कंडीशन मेरी भी रहती है, क्या किया जाए अब। हाँ हाँ, ये लोग कुछ लोग जो है बस स्टेज तक महदूद रह हो गए, समझे, और हाँ बाद में जो है अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए। हाँ हजरत, हमारे कई सारे उलमा ऐसे हैं नारा तो लगता है स्टेज पर, मसले के आला और हमारी आवाम भी कुछ ऐसे ही है जी वही तो जो खिदमत करते हैं जी जी तो उनको बुलाते नहीं। बिल्कुल यही तो है, क्या करें। और आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।